infection. Hello and welcome to our special show, Doctors Speak, where you can call in live and speak to experts in the field of coronavirus and raise any of your queries or doubts that you might be having about the way this entire disease has been progressing through the country and the world, and the methods, the entire gamut of steps and arrangements that are being used to fight this disease, and at the same time the issue also of returning migrants to their homes, or the fact that economic activity needs to pick up. What is the best way to go about it? What is the best way to go about getting back to work if you have to? All those questions that might be arising in your minds. This is a daily show. It's a bilingual show. With me is my colleague, along with me, that is Gautam, my colleague Ritu as well, who will tell you all about it in terms of what you can do to get in touch with us so that we can put you in touch with the experts जी हाँ, बिल्कुल अगले 1 घंटे तक यानी 2 से 3 के बीच में आप हमें इन 2 फोन नंबर्स पे लगातार कॉल कर सकते हैं। अपने सवाल हमारे साथ जो विशेषज्ञ डॉक्टर हमारे पैनल में हैं उनसे आप सवाल कर सकते हैं। ये नंबर है 01123387031, 01123097655। मैं एक बार हिंदी में भी इन नंबरों को दोहरा देती हूँ। 01123387031, 01123097655, यानी अगले 1 घंटे तक आप हमें कॉल कर सकते हैं। और जिस तरह से गौतम ने बताया कि कोविड-19 से जुड़ी तमाम जो आपके हो सकते हैं कुछ सवाल हों, और लॉकडाउन में जिस तरह से ढील दी गई है उसके बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग और उसके कुछ दिशा निर्देश हैं जिसका आपको लगातार पालन करना है, उसमें कुछ सवाल आपके हो सकते हैं। जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं उनके कुछ अलग सवाल हो सकते हैं। कोविड से इतर जो तमाम बीमारियों से, गंभीर बीमारियों से ग्रस्त मरीज हैं, उनके लिए कुछ सवाल हो सकते हैं। इन तमाम सवालों के साथ आप हमें अब से अगले 1 घंटे तक फोन कर सकते हैं। और ये सवाल आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, ट्विटर पे, फेसबुक पे। ट्विटर पे @DD News Live है और फेसबुक पे DD News का पेज है। ट्विटर पे आप एक ट्वीट होगा डॉक्टर स्पीक का, उसके जवाब में आप अपने सवाल रख सकते हैं। और फेसबुक पे भी आप नीचे जो तमाम जगह हैं कमेंट के लिए, वहाँ पर आप लिख सकते हैं अपने सवाल और वो हम तक पहुँच जाएंगे और हम उन्हें अपने जो विशेषज्ञ हैं उनके साथ उठा सकते हैं। अभी हमारे साथ कौन जुड़े हैं विशेषज्ञ के तौर पर? हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर AK वार्ष्णेय, ये प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन है राम मनोहर लोहिया अस्पताल के। साथ में हमारे साथ डॉक्टर सौमित्र रावत भी जुड़े हैं, चेयरमैन GI सर्जरी गंगाराम हॉस्पिटल। और डॉक्टर राजेश्वरी सुब्रमण्यम भी है हमारे साथ, ये हेड क्रिटिकल केयर है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एम्स दिल्ली। आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट टू यू डॉक्टर वार्ष्णेय, इफ आई कुड आस्क यू, द वे थिंग्स आर गोइंग इन द कंट्री एट दिस मोमेंट where we're still in lockdown, but some activities have been allowed in different zones, and restrictions have been taken off, the most of course in the green zone, then the orange, and then even in red some restrictions have been taken off. Only in the containment zone are things really restricted, and in that midst we still have cases going up. The recovery rate is also improving. So to what extent should someone stepping out of home for some reason be concerned about the situation in terms of to what extent is that person exposing himself or herself? As you have rightly said, government has divided the zones red, green, red, orange or green depending upon the number of cases for the last few weeks. If there is no case for last 3 weeks, it is the green zone. For last 2 weeks, it is orange zone. And if the cases are still continuing, it is the red zone. And in red zone also there are certain pockets where the concentration of the cases there, where the people are living in a very close community, in a village, close surroundings, and they are spreading the infection from one to each other. As we know, umpteen times we have discussed, this infection spreads from person to person through the droplet infection. So, any person who is having the infection, if any other person is coming unprotected within a distance of 3 to 5 feet, they may catch the infection. Only precaution is that maintain the social distance as far as possible, keep the mask with the person who is not diseased, that also, and who is diseased, that also. Every person should have the mask, because if you are putting the mask, chances of droplet going outside your mask is very minimal, and another person is also wearing the mask,
they are catching the infection through the now nose or mouth is also very low. So, that is the only, and then of course, don't put your fingers or unclean hand on your nose, mouth or eyes, and if there is a, you always wash your hand with the soap at the for 20 seconds. If the outside you are going and soap is not available, then use some good sanitizer which should contains the more than 60% alcohol. These are the basic precautions. With all these precautions, we can only check the spread of infection. There is no other way, because still lot of work is going in the science, but still there is no definitive treatment modalities. There is no preventive medicine. There is no vaccination to prevent the disease. डॉक्टर सौमित्र रावत, जिस तरह से चरणबद्ध तरीके से इस लॉकडाउन में कुछ छूट दी गई है, साथ ही साथ ग्रीन, ऑरेंज, रेड कंटेनमेंट जो ये जोन तय किए गए हैं, उसके तहत भी आज की तारीख में अगर हम बात करें, पिछले 2 महीने में बहुत से ऐसे पेशेंट्स रहे होंगे जिनकी सर्जरी की डेट्स थी, जिनके ट्रीटमेंट कुछ आगे शायद इस लॉकडाउन के तहत आगे खिसकाए गए होंगे, उनमें कुछ बदलाव किए गए होंगे। उनके लिए अब आज की तारीख में क्या सुझाव रहेगा? क्या वो अपनी सर्जरी को लेकर अब आगे संपर्क कर सकते हैं, या कितने दिन और लगेंगे उन तमाम प्रक्रियाओं पर आगे बढ़ने में? देखिए रितु जी, हम लोग इमरजेंसी सर्जरी अभी भी कर रहे हैं, और अभी हमने 7-10 दिन पहले 2 पेशेंट ऑपरेट किए थे। एक को स्टमक कैंसर था जो कि ब्लॉक कर रहा था, एक को छोटी आंत का ऑब्स्ट्रक्शन था। तो जो इमरजेंसी सर्जरी है वो सारे बड़े हॉस्पिटल में, मैं अपना गंगाराम हॉस्पिटल में मैं हूँ सर्जिकल गैस्ट्रो का चेयरमैन, तो मैं अपने हॉस्पिटल की बात बड़े क्लियरली तरीके से कहता हूँ कि जो भी इमरजेंसी पेशेंट हैं जिनको इमरजेंसी सर्जरी की जरूरत है वो हो रही है, और जो भी रूटीन सर्जरी वाले हैं कि जो सर्जरी वेट कर सकती है वो लॉकडाउन के बाद तक वेट करें। Okay, we have a caller joining us from Delhi. Prabha is on the phone line. Go ahead, Prabha. Ask your question. Yeah, good afternoon to all. Actually, मुझे मेरा क्वेश्चन ये था that I am 9 months pregnant and मेरा जो रूटीन चेकअप है वो डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल से चल रहा है। तो इज इट सेफ कि मैं इस कंडीशन में जहाँ पे वहाँ पे कोविड के इतने सारे पेशेंट हैं और उनका चेकअप वहाँ पे चल रहा है, तो मेरे लिए वहाँ जाना सेफ होगा कि नहीं? डॉक्टर वार्ष्णेय, देखिए बिल्कुल आपका बहुत अच्छा सवाल है। काफ़ी लोग इससे एप्रीहेंशन में हैं। हम लोगों ने आरएमएल हॉस्पिटल में कोविड विंग एक अलग बना रखा है, जो एक पूरी बिल्डिंग है। आरएमएल हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसकी एक विंग को हमने कोविड विंग बना रखा है। तो जो भी पेशेंट सारी के आते हैं, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज़ के आते हैं या इन्फ्लुएंजा लाइक के लिए, वो सारे के सारे वहाँ रेफ़र किए जाते हैं। और ज़रूरत के हिसाब से जो नॉन सारी पेशेंट हैं उनके लिए सारा ओपीडी भी खुला हुआ है, सारा इमरजेंसी विंग अलग से खुला हुआ है। हाँ, रूटीन सर्जरी हम लोग नहीं कर रहे हैं, पर ऑल द इमरजेंसी सर्जरीज आर बीइंग टेकन केयर ऑफ, ऑल द ओपीडीज आर ओपनिंग एंड you are totally safe. But of course, if you have any symptom of the respiratory, you first should go to the flu center. We have to open a OPD in the flu center also, where you can go. Otherwise, if you do not have any symptom, you can come to your normal doctor. All the doctors are sitting and we are running all the OPDs and emergency services. जी, इसी सवाल I को think एक बार one और thing तो that has to be डॉक्टर borne से in भी mind is जी। that Dr. Subramaniam, if anybody wants to visit a hospital, in the first place, one has to wear a mask no matter what, wherever you're going, be it a hospital or any other place. Is there any other precaution that you would like to advise? Wearing mask is the most important thing. And apart from social distancing, there should be a policy. We have a place of not crowding the OPDs. So patients should also not crowd the OPDs and should learn to sit at a distance from each other and have their turn patiently and wait for their turn patiently. That is the only thing I can advise. And after going back from the hospital visit, they must clean their hands well and wash themselves well or have a bath preferably, and that should be taken care of. Okay, that is quite important. What you mentioned is that after you visit the hospital, it's a good idea to wash hands. Even better if you can have head to toe bath and a change of clothes, of course, along with that.
Let's take a जी, डॉक्टर सौमित्र हमारे साथ जुड़े ही हुए हैं। गौतम, एक बार डॉक्टर सौमित्र से भी उस सवाल पे एक जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर सौमित्र, जिस अभी जो प्रभा थी जिन्होंने फ़ोन किया, वो प्रेग्नेंट हैं, तो गर्भवती महिलाओं के लिए अगर उन्हें अस्पताल जाना है तो किस तरह के एहतियात बरतने की ज़रूरत है? और अगर गंगाराम हॉस्पिटल ही अगर गर्भवती महिलाएं अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा चुकी हैं तो वो आते समय किन बातों का ध्यान रखें, और या किसी तरह के डर की उन्हें मतलब डर के साथ वहां पहुंचने की जरूरत नहीं है? देखिए, जो आपको एहतियात लेने हैं वो तो आप लेंगे ही, कि आपको बार बार हाथ धोने हैं। आपको जो हाथ धोने के बाद जो आप निकलेंगे घर से तो मास्क लेके लगा के निकलना है आपको। और जब आप हॉस्पिटल जाएंगे, बेस्ट ये रहेगा पहले आप डॉक्टर से अपने बात कर लें। डॉक्टर का जो कॉन्टैक्ट नंबर डॉक्टर ने दिया होगा, सो डैट कि आप जब हॉस्पिटल पहुंचेंगे आपके लिए सारे लोग वहां पर रेडी होंगे। Dr. Varshney, these challenges that are coming up, especially in urban centers where these cases are mounting and the containment zones are rising, that's also leading to a lot of worry among people as well. And they worry that will our area become a containment zone even if one case arises? Could you just explain to our viewers, because we often hear questions in that regard, as to what really determines the criteria for a containment zone? When there is a large number of cases in a house or in a community or in a society, then we call it a pocket of the infection, and then you have to contain that zone, because ultimately if you declare every part of the city as a red zone, then there will be no movement and you cannot do any activity. So in the more red containment zones in a city is not necessarily a bad thing. It's a good thing, because that means that the effort is intense to control the spread of the disease. But in the containment, the red zone, in the containment zone, of course, you have to keep very vigilant, and as far as possible, they should be contained to their house, and every facility should be there, and a proper isolation. What we are taking social distancing as far as possible, and if they are a positive case, then they should be admitted in the hospital, and other patients who are not having positive, they should be screened for the infection also, and then home quarantine should be done for 14 days period, and they should be advised if there is any symptom, any fever, any cough or any symptom is coming, they should immediately report. And of course, as government has advised to download a digital platform Arogya Setu, and that is also helpful in knowing whether you are infected or not, any other person in your vicinity infected or not, how many person are having symptom, how many have the positive. So all the making the good strategy, then only you can contain the disease. Otherwise, this disease is very infectious, and if you are coming very close to a person unprotected, you will definitely catch the infection. जी, डॉक्टर वार्ष्णेय, दो कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। निधि गुजरात से हमारे साथ हैं और नगेंद्र नेगी हिमाचल से। निधि, पहले आप अपना सवाल पूछिए। हेलो सर, मैं गुजरात से बोल रही हूँ और मेरी मदर को मेटास्टेटिक टाइप का ब्रेस्ट कैंसर है और उनके 6 कीमोथेरेपी सेशन कंप्लीट हो गए और अभी वो टारगेटेड ट्रांसटोजुमैब और कैपेसिटाबाइन टैबलेट पे है और अभी उनका 15 तारीख को है सेशन टारगेटेड थेरापी का। तो मुझे ये जानना था कि मैं अभी ग्रीन जोन में हूँ और हमारी जो अवेलेबिलिटी है मतलब ट्रीटमेंट की वो राजकोट में है, यहाँ से 120 किलोमीटर। तो अभी हमें करवाने जाना चाहिए या कुछ महीनों तक हम उसे होल्ड पर रख सकते हैं? तो उससे कोई इफेक्ट पड़ेगा पेशेंट की हेल्थ पे या मतलब? डॉक्टर सुब्रमण्यम, हम आपसे इस पे जवाब लेंगे, उससे पहले एक सवाल और हम ले रहे हैं। हमारे साथ नगेंद्र नेगी भी जुड़ रहे हैं हिमाचल से। जी नगेंद्र, आप भी अपना सवाल पूछें। नमस्कार मैडम, हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। मैडम, मेरा सवाल ये है कि ये जो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी ने बात कही है कि अभी तो ये पिक्चर है जून जुलाई में ये पीक पे होगा, तो हमें आवाम को इसकी क्या ये तैयारी करनी चाहिए? और दूसरा ये है कि ये कोरोना के कितने प्रकार हैं और कौन सा जो स्वरूप जो बदला हुआ स्वरूप है, तो ये इसका कौन सा प्राण घातक है? क्योंकि हमारे सरकाघाट में ब्राउन बैट बहुत ज्यादा है जिससे बहुत ज्यादा दहशत है। ये जो हॉर्सशू वाली ब्राउन बैट है ना मैडम, ये इनका क्या इलाज किया जाए? क्या सैनिटाइजेशन करवाए सरकार? क्या कुछ ना कुछ समाधान इसका किया जाए जो लाखों की तादाद में है? हम चाइना बॉर्डर की स्टेट है सर। धन्यवाद।
शुक्रिया शुक्रिया नगेन जी। सुब्रमण्यम, डॉक्टर सुब्रमण्यम, हम आपके पास सबसे पहले आएंगे जो उन महिला ने सवाल पूछा था जिनकी मदर कैंसर पेशेंट हैं। जी, ये एक बहुत ही अगेन ये प्रॉब्लम है क्योंकि नॉन कोविड प्रॉब्लम्स तो चलती जा रही हैं, तो इसमें कैंसर और कीमोथेरेपी का बहुत ज़्यादा ही एक अहम इम्पोर्टेंस है, बिकॉज कभी कभी कैंसर क्योर के स्टेज पे पहुंच जाता है और उस टाइम पे डिसीजन लेना होता है कि हमें नेक्स्ट स्टेप लेना है कि नहीं। मैं ये एडवाइस करूँगी कि अगर क्योंकि वो ग्रीन जोन में है, वो ट्राई करें, कोशिश करें कि इसी तरह से कहीं पे लो इन्फेक्शन रेट वाली जगह से अगर ट्रीटमेंट पॉसिबल है तो इस वाले स्टेज में उनकी मदर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है और उनको डेफिनेटली अगर वो बहुत ही रेड जोन या रेड हॉट स्पॉट में जाएंगे तो उनको थोड़े से संक्रमण के चांसेस डेफिनेटली ज़्यादा हैं। तो बट ये इसका मतलब ये नहीं कि उनको इन्फेक्शन होगा। सो आई थिंक टेलीफोन वो उस डॉक्टर से पहले कंसल्ट कर लें कि वो किस जगह पे आना, किस टाइम पे आए, और अपना हॉस्पिटल विजिट बहुत मिनिमाइज करके कराने में ही समझदारी है। राइट जी, आई होप निधि आपको अपने सवाल का का जवाब मिल गया होगा। हमारे साथ डॉक्टर रावत है। डॉक्टर रावत, आपने नेगी साहब का सवाल सुना होगा, उसका क्या जवाब दे सकते हैं आप? उन्होंने पूछा था कि कितने प्रकार के कोरोना वायरस होते हैं, कौन सा सबसे ज़्यादा घातक होता है, और क्या कदम उठाए जाना चाहिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हिमाचल सटा हुआ है चाइना के साथ। उन्होंने ये भी कहा कि बदला हुआ रूप क्या है कोरोना का। आई थिंक अगर हम देखें जो कोरोना वायरस आजकल आ रहा है वो पहले नहीं हुआ था, और पहले जो सार्स वायरस का इन्फेक्शन हुआ था दैट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ कोरोना वायरस। उससे पहले आपका मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी वायरस जो हुआ था वो भी कोरोना वायरस था। सार्स और जो अभी करंट कोरोना वायरस है उसमें दो चीजें हैं। जो सार्स वायरस था वो ज्यादा कष्टदायक था कि मोर्टेलिटी रेट सार्स वायरस में ज्यादा थी, लेकिन जो ट्रांसमिशन रेट है वो सार्स का कम था। उसी कारण हम लोगों ने सार्स को कंटेन कर लिया था, ऑल्दो मोर्टेलिटी ज्यादा थी यहाँ पर। और जो कोरोना वायरस अभी चल रहा है, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट बार बार बोल रही है, ये क्रिकेट का 2020 मैच नहीं है, ये 5 डेज का गेम है। हमें बड़े संभल के रहना होगा, और अगर जीतना है हमें एंड तक लड़ाई लड़नी होगी। और जो गवर्नमेंट ने जितने एहतियात लिए हैं उससे हम लोग लग रहा है कि हम जीत रहे हैं। पहले जो डबलिंग टाइम था वो 5 डेज था, फिर डबलिंग टाइम 7 डेज हुआ, आज की डेट में डबलिंग टाइम 11 डेज है। और जो मोर्टेलिटी है वो हमारी पूरे वर्ल्ड में काफी कम है, 3.3% मोर्टेलिटी है। तो आप ये मान के चलिए कि जिसको भी कोरोना वायरस होगा 1/5 और 1/6 लोग ही हैं जिनको की हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट होगी, जिनको की सीवियर सिम्टम्स होंगे। बाकी जो 80-85% दे विल ओनली हैव ए माइल्ड सिम्टम्स जो कि सिम्टोमेटिकली ट्रीट हो जाएंगे। हमें जो कि है घबराना नहीं है, और जो एहतियात बोली गई है वो आपको बरतनी है कि आपको हाथ, जब भी आप कोई सरफेस टच करते हैं, बाहर जाते हैं, हाथ आपको साबुन और पानी से धोना है या सैनिटाइजर से धोना है, और आपको वेल हाइड्रेटेड रहना है, बैलेंस डाइट लेना है, जो भी फ्रूट एंड वेजिटेबल है जो आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव करती है वो आपको लेना है। एक्सरसाइज रेगुलरली करना है, घर में ही रह के आप योगा वगैरह करिए, अच्छी स्लीप लेना है, यही सब चीजें हैं, और आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी रखनी होगी। Certainly. We are getting some questions on our Facebook page as well from our viewers. This question is from Abu Dhabi. Before boarding the evacuation flights, they are conducting both IgM and IgG tests, and only those who test negative in both tests are allowed to board. Now, despite this, why are the passengers being forced to undergo mandatory 14 days quarantine at destination? This is a question, Dr. Varshney, that has been asked. This has been explained in the past as well, why this quarantine is necessary, but perhaps
it needs further explanation. डॉक्टर वार्ष्णेय इसका हिंदी में भी जवाब चाहेंगे, इसलिए कि बहुत सारे दर्शक देखिए, जो आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडी होते हैं, जब भी हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन होता है, चाहे वायरस इन्फेक्शन हो या बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो, हमारे शरीर उसके लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाती है। जनरली जो शुरू की एंटीबॉडी होती है, जो 7 दिन में लगभग आती है, वो आईजीएम एंटीबॉडी होती है, जो तुरंत प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी है। उसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी आईजीजी होती है, जिसको 3 से 4 हफ्ते बाद बनती है। तो ये टेस्ट ये दिखाता है कि आपको पास्ट में कोई इन्फेक्शन हुआ है नहीं। अगर हम एंटीबॉडी का टेस्ट करते हैं तो हम ये बता सकते हैं कि आपको इन्फेक्शन हुआ। अगर वो आईजीएम एंटीबॉडी है तो लगता है रिसेंट पास्ट में हुआ है, और कुछ समय के बाद आईजीएम एंटीबॉडी गायब हो जाती है, आईजीजी रहती है, तो ये दिखाता है कि पास्ट में आपको इन्फेक्शन हुआ। परंतु जैसा आपने कहा कि इन्होंने ये कहा कि चूंकि उसमें चांसेज ये होते हैं कि दोबारा भी, हालांकि चांसेज अभी ऐसे नहीं आए हैं कि दोबारा आपको इन्फेक्शन हो सकता है, परंतु क्वारंटाइन रखने का पर्पज़ ये है कि अभी वायरस का टेस्ट नहीं किया इन पे। कई बार हमने जैसे एंटीबॉडी तो आ गई शरीर में, पर वायरस अभी भी एक्टिव रह सकता है, और ऐसा पाया गया कि वायरस 4 हफ्ते 5 हफ्ते तक भी एक्टिव रह सकता है। तो उस पीरियड में भी आप जो है ट्रांसमिट कर सकते हैं इन्फेक्शन। तो प्रिकॉशनरी ये अच्छा है कि अगर आप क्वारंटाइन में रहें या आइसोलेशन में रहें, जिससे किसी और को दोबारा इन्फेक्शन ना फैल सके। जी हाँ, तो ये बड़ी जानकारी है गौतम, तमाम उन लोगों के लिए जो विदेशों से भारत वापस लौट रहे हैं। एयरपोर्ट पे भले ही आपके टेस्ट हो रहे हों, वो टेस्ट नेगेटिव आ रहे हैं, उसके बाद भी आपको क्वारंटाइन में 14 दिन रहना चाहिए और रहना होगा ही, यही दिशा निर्देश हैं। 24 घंटे भी नहीं हुए आप संक्रमित हुए दूसरे हो, में तो ये भी कह रहा हूँ कि अगर वो टेस्ट नहीं निगेटिव आए तो उनको तो दोबारा इन्फेक्शन होने की पूरी संभावना है, क्योंकि वो वहाँ पे निगेटिव हैं। लेकिन अगर हमारे यहाँ एक्सपोज हो जाते हैं तो उनको इन्फेक्शन हो जाएगा दोबारा। तो इसलिए बेटर है कि वो आइसोलेशन में रहें और इन्फेक्शन ना फैले। कुछ ऐसे ही सवाल फेसबुक पे डॉक्टर वार्ष्णेय और भी हैं, जिसमें एक सवाल ये भी है कि एसिम्प्टोमेटिक जो पेशेंट है वो किस तरह दूसरों को असर कर सकता है और कितने दिन तक वो कोविड पॉजिटिव रह सकता है? हाँ, देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि जैसे अभी डॉक्टर साहब ने पहले कहा, हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि 70% पेशेंट ऐसे होते हैं जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं या उनको माइल्ड इन्फेक्शन होता है। वायरस उनके शरीर में गया है, लेकिन चूंकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी है, वो हेल्दी लोग हैं, तो दे मे नॉट सो मैनी सिम्टम, और मे बी माइल्ड फीवर, लो ग्रेड फीवर, 99, 100 फीवर, सम माइल्ड कॉफ एंड ऑल दैट, दे मे नॉट टेक it is a COVID infection, and they may not get it tested also, but they can transmit the infection to the other person, even to the healthy person or to the person who are having the comorbidity. So all these persons, that's why we are saying that they need not to go testing, but they should take the precautionary measure, and precaution is they should wear the mask, and everybody should keep the social distancing, everybody should wear the mask and sanitize their hand. If these 3 precautions are done, then possibly we can halt the progression of the disease and the spread of the infection. There is no other way till we get the some vaccination or some medication to prevent the disease. We have some more questions from Facebook as well. My mother is having hypothyroid, taking 75 mg thyroxine tablet for the past 4 years. The dosage is varying from 50 to 75 mg. Once in 3 months, she has to get tested at CGHS, but our area is in red zone. Can she continue taking the same dosage? If yes, for how many days, or no, what is your suggestion? 29th of April was the due date for the test. I know, Dr. Subramaniam, you're not an OB-GYN, that's not your specialty, but are you comfortable answering that question? Very much, very much. As anesthesia people, we are comfortable answering any question because we are actually managing these COVID patients. So I am very happy to answer her query. Thank you. Thank you. One reassure is that 50 to 75 micrograms is a very, very narrow dose range. So she need not be afraid. And thyroxine, the drug has got a very long half-life also. So even if her mother takes 50 or even if she takes 75, it is not going to make a very big clinical change in her being. So what she can look for is that she can look out for any increase in symptoms of hypothyroidism. If her mother is feeling unduly lethargic, or she is feeling very fatigued, or she is feeling excessive cold or some such things, I am sure she must be noticing. In the absence of all this, there is no need to worry and there is no need to rush for testing. She can easily wait for a month or 2 and then get her thyroid levels back. Right, thank you. I hope that answers the question that was raised on Facebook. I don't have the location and name of the person right now, but I'll try and get that as well. We have more questions really coming through as far as
people have really pointed queries. In fact, there's a 65-year-old GP in a small town, he's saying, and he's been practicing for the last 40 years. And he's accustomed to his patients just walking in, and now he cannot control their entry. That's what he's saying. So he's asking Dr. Rawat, should he continue seeing patients as he's been seeing for the last 40 years, or should he just shut his practice for some time? I think he should continue seeing it as long as he's maintaining a social distancing. Social distancing is very important as long as the patient is in the queue and there is a proper social distancing which is being maintained. And he's concerned about his own age. He's 65. I think that is for him to decide as long as he takes all the precautions, like he's putting a mask himself and then he's taking all the precaution himself, and also he need to see whether he has any comorbid condition, because if he has a comorbid condition, then it becomes a slightly higher risk. Comorbid condition of diabetes, hypertension, heart disease, or asthma. These are the comorbid condition which Dr. Guleria also explained it very, very clearly when he was addressing in Ahmedabad. Right. एक और इसी से संबंधित सवाल है डॉक्टर वाशने, एक महिलाएं पूछ रही हैं कि मेरे पति हैं, वो डॉक्टर हैं और उनको डायबिटीज़ भी है और उनकी कोविड ड्यूटी लगती है, तो आप कितना इनको आंकेंगे कि कितना रिस्क है इनको कोविड होने का? देखिए, एज डायबिटीज आजकल यंग एज में भी आ रही है, तो डेफिनेटली इन कंपेरिजन टू द नॉर्मल पर्सन ए डायबिटिक पर्सन हैव द मोर रिस्क, ये तो निश्चित है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है। परंतु ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल कोई ड्यूटी नहीं कर सकते। अगर उनको ड्यूटी सब कुछ जानते हुए भी ड्यूटी पे लगाया गया तो ही शुड, बिकॉज ही इज वर्किंग इन द कोविड वार्ड, ही शुड प्रोटेक्ट हिमसेल्फ विद द पीपी किट, मस्ट बियर द पीपी किट फुल्ली while going to the COVID duty ward. Then coming up, he should donning and doffing what we call kit, PP kit. So he should do all the preventive precautions, and then he should come with the sanitize, and normally they come home with after taking a bath and all that. So I think they can do the duty, but they should have all the mandatory precaution, and precaution for the medical fraternity are much more strict in comparison to the general public. डॉक्टर वाशना, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं अमृतसर से, इकबाल सिंह। इकबाल साहब, आप पूछें अपना सवाल। गुड आफ्टरनून सभी पैनलिस्ट को। इकबाल सिंह राय, मेन बाजार, हठूर डिस्ट्रिक्ट, लुधियाना से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है, अगर रब ना करे किसी प्रेग्नेंट लेडी को कोविड-19 का मतलब पॉजिटिव आ जाए, तो क्या ये असर उसके आने वाले मतलब जो बेबी बॉर्न है उस पर भी पड़ सकता है? थैंक यू जी। डॉक्टर सुब्रमण्यम, ये आपने बहुत अच्छा, मैं हिंदी में आंसर करूं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पाया गया है कि गर्भवती महिला को अगर कोविड लग गया तो उसके बच्चे को कोविड लगने के चांसेस बहुत ही कम है। ये 1 से 10% तक ही नवजात शिशु को होने के चांसेस हैं। तो नॉर्मली हम लोग गर्भवती महिला का जब उसका डिलीवरी हो जाता है तो हम लोग 5वें और 10वें दिन को बच्चे का टेस्टिंग करते हैं, और ये इंसिडेंस जैसे मैंने बताया बहुत ही कम है। आप घबराना नहीं, किसी को हो भी जाए तो माँ भी ठीक हो जाएगी, बच्चा भी ठीक हो जाएगा। जी हाँ, तो गर्भवती महिलाओं के लिए एक तरह से जो आपने बताया है ये अपने आप में एक उनकी चिंताओं को दूर करता है कि गर्भवती महिलाओं को मुश्किल से 1 से 10% के चांसेस होते हैं कि उनके बच्चों को ये संक्रमण हो, अन्यथा ये नहीं होता है। उसके बावजूद भी डिलीवरी के बाद 1 से 10 दिन तक बच्चे को रखा जाता है और उसका टेस्ट किया जाता है। डॉक्टर सुब्रमण्यम है हमारे साथ, एम्स की हैं, क्रिटिकल केयर की हेड हैं। वो बता रही हैं कि किसी को भी, गर्भवती महिला को किसी भी तरह के डरने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे शो में लगातार हमने देखा कि टीके को लेके बड़े सवाल आ रहे हैं। आज भी एक सवाल आया है कि पूरी दुनिया में कई जगह क्लेम किया जा रहा है कि वैक्सीन डेवलप हो रही है, लेकिन ये बाजार में कब तक उतरेगी? डॉक्टर रावत, आप इसका जवाब दे सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। जो वैक्सीन डेवलप हो रही है, जब भी वैक्सीन मार्केट में आती है उससे पहले ट्रायल होते हैं। जो फाइनल स्टेजेस में जो वैक्सीन चल रही है, एक ऑक्सफोर्ड में जेनर इंस्टीट्यूट ने वैक्सीन डेवलप करी है।
मैं इंग्लैंड में था 17 साल, तो ऑक्सफोर्ड के बारे में मुझे बड़ा अच्छी तरह जानकारी है। तो उन्होंने जो डेवलप करी है, एंड दे आर सो श्योर अबाउट द एफिकेसी, कि उन्होंने प्रोडक्शन 7 जगह पे ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। 3 जगह आपके यूके में, 2 जगह यूरोप में, एक उसका प्रोडक्शन इंडिया में भी हो रहा है और एक चाइना में है। और जब तक इनका ट्रायल चल रहा है, 510 जो वॉलेंटियर हैं उसके ऊपर अभी ट्रायल चल रहा है। होपफुली नेक्स्ट 1-2 महीने में ट्रायल खत्म हो जाएगा और वो सक्सेसफुल रहेगा, तब तक ऑलरेडी वैक्सीन डेवलप हो चुकी होगी। तो उन्होंने रिस्क लिया है कि उन्होंने ऑलरेडी जो डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट करा है 7 जगह पर, जिसकी अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है और जो लैग टाइम है वैक्सीन बनाने का, वो खत्म हो जाएगा। राइट। डॉक्टर रावत, फेसबुक पे जो हमारे पास सवाल आ रहे हैं उसमें एक सवाल ये भी है कि एक ओसीडी के पेशेंट्स जो हैं उनके लिए मौजूदा हालात में ये प्रिकॉशन या ओवर कॉशंस जो हो रहे हैं वो क्या करें इससे बचने के लिए? आई थिंक उसमें वही है, आपको प्रोएक्टिव एंड पॉजिटिव रहना है। और आप ये मान के चलिए कि जो ये ओसीडी के पेशेंट हैं उनको हेल्दी रहना है, अपने आप को मन लगाना है, पॉजिटिव रहना है। वही चीज जो है वो घर में जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनके लिए भी है कि बच्चों को भी पॉजिटिव रहना है। बच्चों को जो हाथ धुलाने का तरीका है उनको एक तरह से गेम के हिसाब से सिखाइए कि आपको बस 20 सेकेंड हाथ धोना है। बच्चा अच्छी तरह धोता है, उन्हें आप पॉइंट्स दीजिए और बच्चों की एक्साइटमेंट है उसको मेंटेन रखिए। That sounds great. Another question of Facebook again, Dr. Bashne. सवाल ये है कि due to the summer heat we perspire a lot. Can the sweat trickling to the eyes infect us? This is a worry that this person has, and he's saying that जब बारिश शुरू हो जाएगी, बरसात का मौसम होगा, तो तब क्या होगा? नहीं, देखिए ऐसा, दिस वायरस इज नॉट ए एयरबॉर्न वायरस. Virus is nothing, not roaming in the air so that you will get the virus. Anybody, whether it is outside or they are safe. Virus will only spread from the person who is infected and through the droplet infection. When the person who is infected coughs and sneezes, then the virus comes out, and if the person is in the vicinity of 3 to 5 feet and not protected, then chances of his getting infection very high. So, unnecessary worry is not required. But definitely all the safety precautions which we have already told many times, they should be taken care of. And similar questions are also asked about, because gyms, swimming pools, other places to exercise are closed. So people are also questioning कि कब तक बंद रहेंगे. अगर हम मास्क पहनते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं, तो फिर जिम, स्विमिंग पूल खोलने में क्या हर्ज है? No, all the gyms and swimming pool, because they are the closed places. So they have to ensure that no infected person goes there. Because if any person, even a single infected person goes there, and they are not maintaining the social distance or something, then chances of getting the infection is very high. So that precaution they have to take. डॉक्टर वाशने, एक सवाल और जो हमारे दूसरे डॉक्टर्स हैं उनसे भी, कि तमाम ऐसे बुजुर्ग लोग हैं, खासकर जो 65 से ऊपर, 70 से ऊपर के हैं, जो कोमोबिलिटी की बात हो रही है, उन्हें कोई ना कोई इस तरह की बीमारी है। ऐसे में ये घबराहट, ये डर कि अगर उन्हें कुछ होता है तो वो अस्पताल तुरंत नहीं जा सकते हैं, या अस्पताल जाएंगे तो वो उन्हें संक्रमण होने के और ज़्यादा चांसेस हैं। ये जो घबराहट है उसको वो लोग कैसे कम कर सकते हैं? इससे कैसे, मतलब वो थोड़ा सा इससे निपटे किस तरह से? देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। एक तो जो भी डेफिनेटली जो बुजुर्ग हैं या जिनको बीमारियां हैं, उनको हमेशा डर रहता है, उनको अपनी बीमारी का ही हमेशा डर रहता है। किसी को जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की है, तो एक तो ये होता है कि जितना बेटर है वो अपनी जो दवाइयाँ पहले रेगुलर ले रहे हैं वो लेते रहें, कभी छोड़ें नहीं, ठीक है। दूसरे, अपने नियमित हल्का सा व्यायाम जो भी वो करते हैं वो जरूर करते रहें। पौष्टिक आहार जिसमें इम्यूनिटी हम बढ़ते हैं, बार बार कहते हैं, प्रोटीन की चीज़ें, हरी सब्जियां, सिट्रस फ्रूट हैं, वो अपना लेते रहें। योगा वगैरह कर सकते हैं वो करते रहें। और कई जगह क्या होता है कि जो उनके
डॉक्टर्स होते हैं, उनके टेलीफोन भी अवेलेबल होते हैं। कोई छोटी मोटी, जैसे कोई डायबिटिक पेशेंट है, वो अपना रेगुलर ब्लड शुगर चेक कर सकता है। अगर छोटा मोटा वेरिएशन होता है तो वो डॉक्टर लोग टेलीफोन पे भी बताते हैं। इसके अलावा देखिए, कोई अगर गंभीर प्रॉब्लम होती है, सपोज किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, किसी को पैरालिसिस आ जाता है, तो उसको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में या तो वो कोई कोविड हॉस्पिटल है तो वो एक्सक्लूसिव कोविड हॉस्पिटल है, अदरवाइज जो हॉस्पिटल जनरल में उन्होंने एक विंग को कोविड बनाया हुआ है, बाकी सब विंग में लगातार इलाज चल रहा है। हमारे जैसे राम मनोहर अस्पताल में भी हम सब मरीजों को ट्रीट कर रहे हैं। नॉन कोविड विंग में हमारे पास हार्ट अटैक के भी पेशेंट हैं, पैरालिसिस के भी पेशेंट हैं, डायलिसिस के भी पेशेंट हैं, प्रेगनेंसी के भी पेशेंट हैं। हर पेशेंट को हम डील कर रहे हैं और वो सब आ सकते हैं और उनको किसी तरीके का इन्फेक्शन फैलने का कोई भी खतरा नहीं। राइट, इसके साथ ही दो सवाल और हैं। एक साहब पूछ रहे हैं कि क्या कोरोना वायरस का असर किडनी पर पड़ता है, और एक सवाल पूछ रहे हैं कि जो केसेस आए हैं उनमें एज वाइज क्या ब्रेकअप रहा है अभी तक का। डॉक्टर रावत, वुड यू लाइक टू आंसर दीज क्वेश्चन? जो किडनी में इफेक्ट आता है डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है। नॉर्मली जो वायरस है वो मुंह या नाक से जाता है और फिर बाद में जो बैक ऑफ द थ्रोट वहाँ जाता है, देन लंग में इन्फेक्ट करता है। जो किडनी में अगर असर करता है वो बहुत लेट करता है, जब पेशेंट आईसीयू सेटिंग में होते हैं, जब उनको सेप्टिक सिंड्रोम वगैरह होता है, तब किडनी में इफेक्ट होता है। डायरेक्टली किडनी में नहीं होता है। ओके। और हाँ जी। And again, the question was also about age-wise breakup of cases in our country. There was some data that was given by the government earlier, and from time to time that data keeps emerging. But what is the latest on that? I think जो age-wise data है उसमें जो young patient हैं, normally they are either symptomatic or they are recovering. और जो normally जो हमारी गवर्नमेंट भी कह रही है कि अगर आप 60 इयर्स के ऊपर हैं और आपको कोमॉर्बिडिटी है जो हमने बताई है, दे आर द पीपल हु रिक्वायर हॉस्पिटल एडमिशन इन मोर नंबर्स। तो ये जो नंबर्स हैं, दीज आर द डायनेमिक नंबर्स। और जो पूरे वर्ल्ड से भी आ रहा है डेटा, वो भी यही बता रहा है कि जो एज जिनकी ज़्यादा होती है उनका हॉस्पिटल एडमिशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और वर्ल्ड में ये भी है कि जो 2/3 पेशेंट हैं, दे आर मेल एंड 1/3 आर फीमेल। Another question we have, Dr. Subramaniam, is someone inquiring about the elderly. The question is 90% of deaths attributed to COVID-19 were among those older and having chronic diseases. Also, herd immunity is of utmost importance during any pandemic. Why did the authorities not suggest or apply specific and selective isolation and protection of the elderly and chronically ill to significantly reduce the number of fatalities? This question is slightly complicated because first of all we have to find out which is the elderly person who been infected or exposed. So once they speciality COVID infection, then they are subject to extra care and attention. And currently, we cannot keep them out in the community. In case an elderly does get infection, in fact, Dr. Guleria also suggested that these patients should be admitted as early as possible. But there is no way of finding out in the community which is the elderly person who's got infected. So we are trying very hard just to find that, test the maximum number of people, test anybody who has suspicious symptoms, and then test their contacts. If there are some elderly people in the contacts, then they are given special attention and they are tested so that we can rule out whether they are having infection or not. Does it answer her question? जी डॉक्टर, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। खुशवंत सिंह है मध्य प्रदेश से। जी खुशवंत सिंह, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ मैडम, सभी डॉक्टर्स लोगों को मेरा नमस्कार सर। एंड आप अपने टीवी की आवाज जरा उसको म्यूट पे कर ले पहले। Information. My question is that I am a 65-year aged person having left ventricular septal hypertrophy since last 20 years, and I am taking beta log, and but I feel fatigue while
standing on the stairs and other things, and having since 5 years uncontrolled diabetes. I have a diabetes more than 300 post meal, 180 then pre meal. Then should I increase my dose, or how should I prevent myself from this virus if even I'm living in the home? And second part is that what is the difference between herpes virus and then this coronavirus? I had herpes since many years back, but sometimes it repeat again. And what antibodies cannot kill the herpes virus, which was a very old virus, sir. Dr. Thank you, sir. Subramaniam. Dr. Rawat. Herpes virus is a very different virus compared to the coronavirus. They both belong to different families, and herpes virus is more related to chicken pox. तो अगर आपको बचपन में अगर चिकन पॉक्स नहीं हुआ हो तो देन योर चांसेस ऑफ गेटिंग herpes इन्फेक्शन इज क्वाइट हाई, एंड आपको मोस्ट प्रॉब्ली herpes उस कॉन्टेक्स्ट में हुआ होगा. एंड फर्दर जो डायबिटिक्स हैं उनको herpes इन्फेक्शन होने के थोड़े और ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि जैसे बाकी डॉक्टर्स ने बताया आपका इम्यूनिटी उतना अच्छा नहीं है जितना बाकी लोगों का है. आपको काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं, आपका हार्ट फंक्शन भी कम है और आपका डायबिटीज़ इतना अनकंट्रोल क्यों है. आई थिंक आपके पास ही उसका जवाब होगा. या तो आप डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस आप पूरी तरह से आप उनको मतलब फॉलो नहीं कर रहे हैं, या आपका मेडिकेशन का लेने का तरीका या ठीक नहीं हो, या मेडिकेशन की क्वांटिटी ठीक नहीं हो. क्योंकि आप इतने साल से डायबिटिक हैं, आई एम श्योर आपके अपने डायबिटीज़ के फिजिशियन होंगे. आप ज़रूर उनसे कंसल्ट कीजिए फ़ोन पर कि क्यों आपका ब्लड शुगर इतना वेरी कर रहा है, बिकॉज ये अच्छी बात नहीं है. सिर्फ कोरोना वायरस के लिए ही नहीं, मगर आपके हार्ट के कंडीशन के लिए, आपके जनरल लाइफस्टाइल के लिए ही आप ज़रूर अपने डायबिटीज़ का ख्याल रखिए. और आपका हार्ट के लिए अगर और दवाइयाँ कुछ बढ़ानी हो, हार्ट का फंक्शन इम्प्रूव करने के लिए आजकल काफ़ी दवाइयाँ हैं, आप ज़रूर कंप्लायंस फॉलो करें. मतलब जो भी आपको एडवाइस दिया जाए उसको बिल्कुल उसका एक एक चीज़ आपको फॉलो करना पड़ेगा. डॉक्टर वार्ष्णेय, आप कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए बिल्कुल ये डॉक्टर साहब ने जैसा कहा कि डायबिटीज़ देखिए एक ऐसी डिजीज़ है जो हमारा देश तो लगभग डायबिटीज़ कैपिटल बनने जा रहा है. 7 करोड़ के लोगों को डायबिटीज़ है और काफ़ी लोगों में हमने देखा कि वो हमेशा अनकंट्रोल्ड रहती है. और उसके कई फैक्टर हैं, क्योंकि पेशेंट कई बार उसको सीरियस नहीं लेता, क्योंकि इसके शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशन कम होते हैं, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते हैं. तब तक चूँकि 10-20 साल में उसकी आंखों पे असर आ सकता है, किडनी पे असर आ सकता है, हार्ट पे असर आ सकता है, तो उस पीरियड को वो समझता नहीं. डॉक्टर भी बार बार एम्फेसिस जरूर करते हैं. और आजकल देखिए हम हमेशा कहते हैं कि हर 3 महीने के बाद हर डायबिटिक पेशेंट को अपना एक ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, जिसको HbA1c कहते हैं, वो कराना चाहिए. और आइडियली ये अगर यंग एज है तो 7 से नीचे होना चाहिए. हाँ, अगर कई कोमॉर्बिडिटी हैं तो हम 7 से 8 के बीच में भी रखते हैं. और जो भी इनके डायबिटोलॉजिस्ट हैं, अब असली चीज़ है कि इनको एम्फेसिस करना चाहिए. देखिए मैं उसको इस तरीके से कहूँगा, जैसे कोई बच्चा है, अगर वो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं ला रहा तो आप वरिड रहते हैं, आप अपने टीचर को फोर्स करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं कि साहब इसको आप बताइए कैसे इम्प्रूव हो, मैं टारगेट नहीं अचीव कर पा रहा. इसी तरीके से डायबिटीज़ है, अगर आप टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे तो अपने डॉक्टर को मजबूर करिए कि भाई उसको बताइए कि मुझे टारगेट चाहिए. तो वो डॉक्टर आपको डाइट में कहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि डायबिटीज़ इज डायनेमिक डिजीज, जहाँ पे डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है, एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल होता है, और तीसरा नंबर ड्रग्स का बहुत बड़ा रोल होता है. तो तीनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से हम उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं. परंतु दोनों की विल चाहिए. सबसे पहले पेशेंट की विल चाहिए, और मोस्ट ऑफ द टाइम डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, लेकिन जब पेशेंट उसको नहीं फॉलो करता तो डॉक्टर भी हथियार डाल देते हैं. तो अगर पेशेंट कहेगा कि नहीं मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मेरा कंट्रोल कराइए. मेरे पास भी देखिए कम से कम हज़ारों पेशेंट मैं डायबिटीज़ के ट्रीट करता हूँ, और काफ़ी पेशेंट जो मेरे पेशेंट हैं वो 6 और 7 के बीच में उन्होंने हीमोग्लोबिन HbA1c लाया. पर वही है कि वो भी बहुत फॉलो करते हैं मेरी एडवाइस को, और मैं लगातार मॉनिटर करता रहता हूँ. तो ये दोनों एक डायनेमिक चीज़ है और दोनों तरफ की इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है. राइट. इस सब के बीच में डॉक्टर साहब, जिस तरह से अब केसेस आ रहे हैं, हम कंटेनमेंट जोन्स की बात कर रहे हैं, लोग ये भी चाहते हैं कि कुछ हद तक उनको अब फ्रीडम में मिले, बिकॉज ये सिचुएशन थोड़ी उनको लग रहा है कि सस्टेन करना मुश्किल हो रहा है. ऐसे में किस तरह से आपको लगता है कि लोगों को अपनी डेली गतिविधियों को चेंज करना चाहिए ताकि वो लॉन्ग टर्म इस सिचुएशन के साथ अडेप्ट कर सके? डॉक्टर वार्ष्णेय. देखिए बहुत ज़रूरी है. सबसे बड़ा तो यही है कि हमको अब ये मान के चलना पड़ेगा कि कोई भी वायरस से
वो इतनी आसानी से जाता नहीं, और ये वायरस भी लंबे समय तक चलेगा। हो सकता है महीनों चले, हो सकता है साल चले, हालांकि नया वायरस हमें नहीं पता। लेकिन जैसे हम पुराने वायरस की बात करें, जो सार्स कोरोना वायरस जो 2002 में आया था वो तो कुछ सालों में गायब हो गया, लेकिन अगर H1N1 वायरस के हैं, जिसको हम कॉमनली स्वाइन फ्लू के हिसाब से, वो अभी भी 11 साल हो गए, अभी भी केस आते रहते हैं। ठीक है, उसकी दवा भी अवेलेबल है, वैक्सीन भी आ गई है। तो ये मान के चलें कि जब तक दवा या वैक्सीन नहीं आती, ये वायरस अभी हम समझेंगे परसिस्ट करेगा। सिर्फ हमको इन्फेक्ट ना करे, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने वर्क प्लेस पे भी जाना पड़ेगा, परंतु हमें पुरानी चीज़ें अब बदलनी पड़ेंगी। वर्क प्लेस पे हमको आइसोलेशन रखना पड़ेगा, सैनिटाइजेशन के सारे मेथड इस्तेमाल करने पड़ेंगे, मास्क पहनना पड़ेगा जिससे हमारे को एक दूसरे को, और किसी को भी पेशेंट को जैसे कॉफ अगर किसी को हो रहा है, कोई बुखार हो रहा है, इमीडिएटली वो अपने डॉक्टर के पास जाए, रिपोर्ट करे, टेस्टिंग कराए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। एक अगर हम टेस्टिंग करेंगे, आइडेंटिफिकेशन होगा। डॉक्टर साहब उनका सवाल लेते हैं। खुशीराम जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, डॉक्टर साहब मेरा सवाल ये है कि जैसे बताया जा रहा है कि जो हार्ट के पेशेंट हैं या जो डायबिटीज है, तो 65 या 60 इयर्स के, लेकिन कई ऐसे, जैसे मेरी उम्र 53 है, मेरे को स्टंट वगैरह 2 स्टंट डले हैं। ऐसे ही मेरे मित्र भी हैं जो 42 साल के हैं, कोई 45 साल के हैं, उनको भी हार्ट पेशेंट ही माना जाएगा? हाँ, तो कोई भी पेशेंट देखिए, अगर उनको हार्ट का पेशेंट है, उनको स्टेंट पड़े हुए हैं, तो उनको हार्ट पेशेंट माना जाएगा, उसका उम्र का नहीं है। देखिए, ये अनफॉर्चुनेटली पहले ये माना जाता है कि हार्ट की डिजीज जो है ओल्ड एज की डिजीज है, पर हमारे देश में यंग पेशेंट में भी हार्ट पेशेंट काफ़ी हैं, यंग में भी आता है। उसका कारण वही है कि लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर बहुत हो रहे हैं। यंग लोग भी जो है अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रख रहे, फिजिकली हमेशा सेडेंटरी हैबिट्स रहते हैं, स्मोकिंग का इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, वह हाई सैचुरेटेड फैट का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिपिड्स लेवल हाई हैं, डायबिटीज़ भी यंग एज में बहुत ज़्यादा है। तो कई फैक्टर मिलकर, जेनेटिक काज भी होते हैं, तो कई फैक्टर मिलकर, लेकिन अगर किसी को स्टेंट पड़ा है तो वो हार्ट का पेशेंट है, उसको वही सारे प्रिकॉशन रखने हैं जो किसी भी कोमॉर्बिडिटी वाले पेशेंट का, जो हाई एज वाला है, उसको रखना है, और उसको और ज़्यादा अपने को एहतियात रखना चाहिए और ज़्यादा फॉलो करना चाहिए डॉक्टर की एडवाइस। जल्दी से सवाल लेते हैं, टाइम खत्म होने वाला है। डॉक्टर रावत, एक सज्जन पूछ रहे हैं कि हम अपने हाथ सैनिटाइज करते रहते हैं, लेकिन फिर भी क्या ग्लव्स पहनना ज़्यादा कारगर होगा कोविड-19 से लड़ने के लिए? आई थिंक अगर आप घर में रह रहे हैं तो ग्लव्स पहनने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू आर इन द करंट कंट्रोल सराउंडिंग्स। अगर आप बाहर जाते हैं तो अलग बात है, बाहर जाते हैं, रिस्क एरिया में जाते हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर हैं उनको तो ग्लव्स भी पहनने पड़ते हैं, और जैसे डॉक्टर वॉश ने भी बताया है कि पूरी पीपीई किट पहनते हैं हम लोग जब हम लोग सर्जरी करते हैं। ये डिपेंड करता है आप किस सराउंडिंग में हैं। लेकिन जो हाथ हैं, कभी भी आप कोई सरफेस को टच करते हैं जहां आपको लग सकता है कि आप जैसे घर के बाहर निकले, आपने कहीं भी टच किया, आप वो हाथ अपना कहीं टच नहीं करेंगे, ना आंखों पे, ना नाक पे, ना मुंह पे। घर आएंगे, सबसे पहले जाके आप अपने हाथ धोएंगे साबुन और वाटर से 20 सेकंड के लिए, उसके बाद आप कुछ टच करिए। जी डॉक्टर रावत। डॉक्टर सुब्रमण्यम, साफ ये दिखाई देता है कि आने वाले समय में हमें अपने रहने के तौर तरीकों को शायद कोविड-19 के बाद अब पूरी तरीके से बदलना होगा, जैसा कि डॉक्टर वार्ष्णेय ने कहा कि अब अपने जीने के अंदाज को ही हमें बदलना है। जी जी, तो आई थिंक उसमें सबसे पहले हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ही उसको मान्यता देंगे और डेफिनेटली इंश्योर करेंगे कि हम लोग भीड़ भाड़ में ना हो। और मुझे लगता है कि एक वरदान मिला है कि हम सब थूकना बंद कर देंगे, शायद मास्क पहनने की वजह से या मास्क होने की, और इवन डिजीज़ को फैलाने के मतलब उसको उसमें मदद करता है। तो हम लोग थूकना कम कर दें, ना थूकें, और हैंड हाइजीन अगर बहुत ज़्यादा रखें तो हम लोग हर एक कोविड ही क्यों नहीं, हम लोग हर एक तरीके की बीमारी को हम लोग भगा सकते हैं इस देश से, अगर हम लोग इन तीन चीज़ों का बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करें तो। Right. Thank you for joining us, Dr. Subramaniam and Dr. Rawat, and also Dr. Varshney. We're completely out of time on the show, but do keep calling in, all our viewers. This is the time to call from 2 to 3. You have the numbers on the screen, and we've shared our social media handles as well. Anything you want to ask about COVID-19, you are free to ask over here.
and we will try and get those questions across to our experts so that they can give you the best answer possible. तो इस कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आप जुड़ेंगे हमारे साथ 2 से 3 के ही समय में, और हमारे डॉक्टर्स जो हमारे पैनल पे रहेंगे उनसे आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।